teachers, and my dear students. Thank you so much for inviting me to the most esteemed institution. Few years back, my husband was also invited to LMG for the Founders Day. Me and my husband both are from Hindi background, and he was also very surprised to be invited to be here, and same with me. So pardon my Hindi, आप लोग सबको I think हिंदी समझ आता होगा. So I will be speaking mostly in Hindi. So when ma'am invited me for recent trends in business, so I was Googling. So what I found out, artificial intelligence, chat GPT and many other things. So I downloaded. Then I found out, am I going to speak about this? No. All these things you also can download very well. So I am not going to speak these things to you. So when Meenu Budhia is coming here to speak, Meenu Budhia is coming here to speak about her own entrepreneurial journey, her own experiences, not about chat GPT and artificial intelligence, right? So I am here to talk about my own entrepreneurial journey, my own experiences which I have experienced in my own journey during my entrepreneurship, which you will never get on internet. Next. So I was born and brought up in Assam, Tinsukia, and I studied from a Hindi medium school, and it was a simpler childhood. And मैंने भी डॉक्टर बनने का सपना देखा था. आप लोग के पास तो आज बहुत ऑप्शंस हैं, उस समय कोई ऑप्शन नहीं था. तो आजकल डॉक्टर आप लोगों को लगता है कि क्या डॉक्टर कुछ खास बात नहीं, पर मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था. पर मेरे लिए वो भी पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि दैट टाइम ओनली ऑप्शन फॉर मी अवेलेबल वाज ह्यूमैनिटीज़. सो आई डिड नॉट बिकम ए डॉक्टर, and I got married very young and shifted to Kolkata. So what I meant to say, nowadays you children, you young adults, if you don't get anything to study, you don't get anything to your wishes, you think देखिए हम लोगों को ये नहीं मिला, हम लोगों को ये कैरियर नहीं मिला, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला था, हम लोगों का एक ही ऑप्शन था, ह्यूमैनिटीज़, वो भी नहीं मिला था. सो प्लीज़ नेवर थिंक कि जो चाहा था वो नहीं मिला. इट्स नेवर द एंड ऑफ द वर्ल्ड. देयर आर, इट्स अ बिग लाइफ एंड सो मेनी ऑप्शंस विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ. लाइफ गोज ऑन. नेक्स्ट. सो आई गॉट मैरिड एंड केम टू कोलकाता. सो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, बेटी की शादी हो गई, फैमिली में सेटल्ड है, अच्छी फैमिली है, बहुत खुश है. पर उनको शायद पता नहीं था कि उनके साथ और मेरे साथ क्या होने वाला है. सो व्हेन माय यंगर डॉटर स्टार्टेड गोइंग टू मॉन्टेसरी, एवरी डे वाज फुल ऑफ कंप्लेंट्स and I could not understand what was happening. So got her diagnosed, took her to NIMHANS Bangalore, and the small piece of paper which I got was low IQ and ADHD, and it crashed our world. I went into severe depression and also became suicidal. That day I needed more help than my daughter. My husband Sanjay took me to the psychiatrist, and I started on my medication. Slowly I was coming back to life. My medication started improving, and I came back to life, but as if I was not into the world. मेरा लाइफ केवल स्टार्ट हुआ था मेरी अपनी बेटी प्राची और मेरी फैमिली के साथ. मेरे को कोई मतलब नहीं था पूरी दुनिया से. I roam around the whole world with Prachi. I wanted to give her the best of the education, as normal life as possible. उसको लेके मैं US, UK, दुबई कहाँ कहाँ नहीं घूमी उसके बेस्ट ऑफ द एजुकेशन के लिए. One day I realized if I am happy, my family is happy, Prachi is happy. That was the acceptance. मैंने प्राची को accept किया, and the way as she was, and
हैप्पीनेस का मतलब दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हैप्पीनेस. एक्सेप्टेंस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड acceptance. And I realized I am a woman too. I completely suffocated the woman inside me. I realized that I also had some dreams and aspirations. Strength was not an option for me. I had to wear it like an armor. And I decided to step out of the house, and my days got lighter and easier. प्राची जो कल तक मेरी कमज़ोरी थी, बहुत बड़ी कमज़ोरी, उसको लेके दिन भर में परेशान रहती थी, और वही मेरी स्ट्रेंथ बन गई, वही मेरी मोटिवेशन बन गई, मेरी गुरूर बन गई, मेरी आशा बन गई. मैंने उसको अपना स्ट्रेंथ बना लिया. नेक्स्ट. So as I told, I always wanted to become a doctor, and I remembered I wanted to study. मेरे को डॉक्टर बनना पॉसिबल नहीं था, पर मेरे को याद आया कि मैं भी पढ़ना चाहती थी, मेरे भी कुछ सपने थे. I became a student all over again. I started studying mental health, and I did mental health course from Kolkata. Then I went to Philadelphia for brain child development. I did CBT from London, and I burnt midnight oil, and I gave exam of after 20 years. It was very, very tough for me, but I did it. And I'm thrilled to say, because I was a topper at my times, so I did it and I passed. And I knew that I was going to touch lives. I was going to touch lives, because I realized that God had larger purpose in creating me and Prachi. I am going to touch lives. So I became and mental health was my calling. Mental health is my ikigai. एक सुबह उठ के एक लगता है क्या करना है, मेंटल हेल्थ यही मेरा एक जुनून बन गया था कि बस इसी के बारे में पढ़ाई करनी है. और मैं एक स्टूडेंट काउंसलर बन गई जेडी बिरला इंस्टीट्यूट में और जेवियर्स में. उसके बाद में वेलव्यू में बैठने लगी. आफ्टर सिटिंग एट वेलव्यू आई रियलाइज्ड वी नीड अ मेंटल हेल्थ क्लिनिक where all services related to mental health will be under one roof. That was a crazy idea, but we needed it in Calcutta. We didn't have such thing. वहीं से जन्म हुआ केयरिंग माइंड्स का. So next, madness is magic. I believe for any entrepreneurship there has to be some madness. कुछ आपकी आइडियाज़ में, थॉट्स में कुछ मैडनेस का होना ज़रूरी है. कुछ मैडनेस, कुछ डिफरेंस नहीं होगा तो वो आइडिया सेल कैसे करेगा. जब मैंने मेंटल हेल्थ क्लिनिक के बारे में सोचा, ये एक पागलपन था उस समय के अनुसार से. मैं एक पागलों का डॉक्टर बनने जा रही थी, मैं एक पागलों का क्लिनिक खोलने जा रही थी लोगों के हिसाब से. मैंने डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस बुलाया, सभी ने मुझे बहुत डिस्करेज किया कि इट इज़ नॉट ए वेरी lucrative career, what you are going to do. But it was madness on my part. I knew it. But मेरे को पता था ये madness है, and madness will work. That I was knowing. And that time मेरे को जब डिप्रेशन आया, मेरे हस्बैंड संजय को जब डिप्रेशन आया, साइकेट्रिस्ट वॉज ए हश थिंग. साइकेट्रिस्ट को हम लोग घर बुलाए थे छुपा के कि कोई देख नहीं ले कि साइकेट्रिस्ट घर आया है. इतना छुपाना पड़ता था. तो मेरे को पता था ये आइडिया बहुत अलग है, पर मेरे को करना ही था. नेक्स्ट, यूनिकनेस सेल्स. सो इट वाज एन यूनिक आइडिया. स्कैरसिटी था इस चीज़ का. कहीं मेंटल हेल्थ क्लिनिक में प्राची को लेके जब जाती थी कहीं कहीं पे थेरापीज़ के लिए, कोने कोने में एकदम डिंजी जगह पे छोटे छोटे मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स होते थे. सीढ़ी में छुप के बैठना पड़ता था. क्यों? मुझको मेरा ही क्वेश्चन था, व्हाई? फिजिकल हेल्थ लोग क्लिनिक खोलते हैं बड़े बड़े ग्लैमरस, बट मेंटल हेल्थ क्लिनिक को इतना छुपाया क्यों जाता है? ये क्वेश्चन मेरे समझ नहीं आता था कि छुपाया क्यों जाता है. क्यों ना एक ऐसा क्लिनिक, ग्लैमरस क्लिनिक खोला जाए जहाँ हमारे बच्चे
एडल्ट, यंग एडल्ट खुशी खुशी सिर उठा के जा पाएँ। क्यों सिर छुपा के हमें जाना पड़ता है? वाई? कितना बड़ा टबू क्यों है? ये मेंटल हेल्थ, ये टॉपिक इतना टबू क्यों है? इट वॉज़ एन यूनिक आइडिया। मेरे घर में, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेंटल हेल्थ का एम तक किसी को मालूम नहीं था। व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? नोबडी न्यू। बस मेंटल हेल्थ मीनू को पसंद है इसलिए सबको पसंद था। बस ये मेरा ब्लेसिंग था कि एवरीबडी सपोर्टेड मी। हैविंग अ मेंटल हेल्थ क्लिनिक वेयर एक तो मेंटल हेल्थ वाज अ यूनिक आइडिया and having all services under one roof, that was another unique idea. And I made it as glamorous as physical health. Why it will be less glamorous? That was not acceptable to me. Next. So recognize your strength. यहाँ एक छोटी सी स्टोरी है। जब केयरिंग माइंड्स का सब तैयारियाँ हो गई थी, all I hired everything, did all the within a fortnight it was going to open and in the location I was there for the interiors. एक दिन शाम को नेबरहुड से लोग आ गए। क्यों? You all won't believe 10 years back क्या हाल था। उन लोग आ गए स्टे ऑर्डर लेके। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं था कि यहाँ पागल लोग इस क्लिनिक में आएंगे इलाज कराने। We were amazed and shocked। पर क्या करें, सब कुछ रुक गया, सब कुछ बंद हो गया। कितना कन्विंस करने की चेष्टा की, कितना समझाने की चेष्टा की, पर नहीं। एक बार इंडिया में कुछ स्टे ऑर्डर आ जाता है या कोर्ट में कोई मैटर चला जाता है, सब कुछ ख़त्म। बहुत ट्राई किया कोर्ट में जाके उन लोगों को कन्विंस करने की, पर नहीं, उन लोगों को नहीं करना था। पागलों को यहाँ आने नहीं देना था, पागलों को नहीं आने देना था। क्या करते? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर पर केयरिंग माइंड को होना था। आप लोग सब में कोई स्ट्रेंथ है, मैं नहीं बोलती कि मेरे में स्ट्रेंथ है। एवरीबडी हैज़ 1 or 2 स्ट्रेंथ गॉड हैज़ गिवन। माई स्ट्रेंथ वॉज डिटर्मिनेशन। फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज ए डिटर्मिन्ड पर्सन। केयरिंग माइंड को तो होना ही था। लोकेशन चला गया तो मैंने सोचा केयरिंग माइंड में अपने घर से स्टार्ट करूँ। मेरे घर के एक छोटे से रूम से, मैंने घर में किसी का परमिशन नहीं लिया, हिम्मत नहीं थी ना हो जाने की। एक रूम में छोटा सा टेबल डाला, 10 कुर्सियाँ डाली, ऑफिस स्टार्ट किया। दूसरे दिन जब लड़कियाँ ऊपर चढ़ने लगी ऑफिस के लिए तो संजय मेरे हस्बैंड पूछते, ये लोग क्यों आई, ऊपर क्यों जा रही है? तो मैंने डरते डरते कहा केयरिंग माइंड चालू हो गया। वी स्टार्टेड लाफिंग। कोई बात नहीं, चलो केयरिंग माइंड चालू हो गया। तो इस तरह से केयरिंग माइंड की स्टार्ट हुई। क्योंकि परमिशन नहीं लिया, मैं सोचा चलो अगर कोई बोलेगा कन्फ्रंट करेंगे। इतनी हिम्मत नहीं थी परमिशन लेने की, उसको ना करवाने की। तो मेरा बोलने का मतलब है कि कुछ भी एक स्ट्रेंथ आपको अपनी रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। स्टार्ट स्मॉल, कीप योर ओवरहेड बजट लो, ऑलवेज कीप योर बजट लो ऑलवेज। ये नहीं कि शुरू में ही खूब बड़ा बड़ा कुछ कर लेना है, बहुत बजट होना चाहिए, बहुत फंड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप में एक हिम्मत होनी चाहिए, अपने आप में एक जुनून होना चाहिए कि हमें ये करना है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट। तो जब मैं केयरिंग माइंड स्टार्ट करने वाली थी तो आई वॉज ऑल अलोन। जैसे मैंने बताया मेंटल हेल्थ का एम भी किसी को पता नहीं था। मतलब क्योंकि मैं खुद ही बताती हूँ, जब हम लोगों के डिप्रेशन आए तो हम लोग को ही नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या होता है। तो मैंने आई स्टार्टेड ऑल बाय माई सेल्फ। आई डिड सॉलिड रिसर्च, आई डिड ऑल माई होमवर्क। मैंने सिमिलर क्लिनिक्स ऑल ओवर इंडिया में विज़िट किए। आई वेंट ऑनलाइन एंड स्टडीड अ लॉट कि ऐसे क्लिनिक कैसे काम करते हैं, क्योंकि केयरिंग माइंड को सक्सेसफुल तो करना ही था। सो आई डिडंट वांट एनी गैप टू हैपन। एंड ये मैं बोलती हूँ कि हमेशा लर्निंग इज़ इन द जर्नी। तो क्या केयरिंग माइंड में जितने एलिमेंट्स थे सब मेरे को आते थे? नहीं, आई लर्नड इन द जर्नी। जैसे कि साइकोमेट्री, केयरिंग माइंड में साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स
मेरे को आई वॉज नॉट फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड. आई बिकेम ए साइकोथेरापिस्ट, बट इट वॉज नॉट साइकोलॉजी. I was not qualified to do psychometric assessment. Now what to do? Because that was the major part of any mental health clinic. मैं कोई प्रोमोटर नहीं थी, ना मेरे को बनना था कि एक प्रोमोटर बन के खोल दिया, लोग आ रहे हैं साइन करके चले जा रहे हैं. नो, आई वॉन्टेड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट. दैट इज़ माई क्लिनिक. मेरा साइन कहीं से होके जा रहा है, उसका कोई वैल्यू है? मैं ऐसे ही साइन करके नहीं भेज दूंगी कि मैं बिना इग्नोरेंट. आई डोंट वांटेड टू बी ए प्रेसिडेंट, आई वांटेड टू बी ए प्राइम मिनिस्टर, जिसको सब पता होना चाहिए. आई बिकेम अ स्टूडेंट ऑल ओवर अगेन. फिर से मैंने साइकोमेट्री पढ़नी चालू की एंड आई टुक 6 to 8 months. इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एट दिस एज. पर कोई उपाय नहीं था, क्योंकि रिपोर्ट्स मुझको पढ़ के साइन करनी थी. मैं बिना पढ़े करती, people would have started taking advantage. तो मैंने पढ़ना चालू किया. I'm thrilled to say I completed my psychometry. And आज मैं रिपोर्ट साइन करती हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या साइन करती हूँ. I know each and every. I have my set of psychologists who are MPhil, much more qualified than me, but I can claim I know more than them. I have much more experience than them. I confront their reports and they all know this. तो इस नेक्स्ट छोटा सा ये मेरा बहुत फेवरेट है. मैं अकेले ही चला था जनाबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया. So now all about leadership. Always have a strong team. एकला चालो रे में काम नहीं चलता है. Always have a very very strong team. आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं. हिम्मत जरूर होनी चाहिए, पर have a strong team. Always team को work with me, not for me. Whenever I hire people, they remember कि मैंने उनको कहा था work with me, not for me. Hire people smarter than you in field that you don't have knowledge and learn from them and manage them. ये नहीं कि आप ये डर गए कि नहीं मेरे से स्मार्ट लोग नहीं आने चाहिए तो फिर फ़ायदा क्या उनको हायर करके. So hire people smarter than you, learn from them and ultimately manage them. Be kind, be accommodating to your colleagues, your staff, but kindness should not be taken as your weakness. This I learned. So my जो मेरा एक उसके बाद मैं केस स्टडीज़ पे जाऊंगी मेरा तीनों इंस्टीट्यूट्स के बारे में. उसके पहले जो मेरा माय सोलर सिस्टम, दिस इज़ माय इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल माय स्पीचेस, ऑल माय. अभी 5 years down the line, artificial intelligence will replace human intelligence, this we assume. But what AI will not replace? Girls, can you tell me? Artificial intelligence क्या replace नहीं कर सकता है? Yes. Yes, very right. So emotions. हम लोगों का इमोशंस, कल्चर, सपोर्ट सिस्टम कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. वो हमारे पास ही रहेगा और हर का यूनिक रहेगा, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव माई ओन सोलर सिस्टम. मेरे हस्बैंड संजय, ही इज़ माई ओन सन हु हैज़ ऑलवेज गिवन मी द बिगेस्ट सपोर्ट. उनको मैं जो बोलती हूँ कि उनको मेंटल हेल्थ का भी पता नहीं था. आज मेंटल हेल्थ पे जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आई फील प्राउड कि चलो. तो कई लोग बोलते हैं कि वो तुमको प्रमोट करते हैं, वो तुमको सपोर्ट करते हैं. सो ही डजंट सपोर्ट मी, ही डजंट प्रमोट मी, ही प्रमोट्स एंड सपोर्ट्स मेंटल हेल्थ. दिस इज़ a mission that my family has taken to promote mental health. So I'm blessed with a family that supports mental health, that supports ultimately me, I agree. कड़ी मेहनत और आइडियाज़ मेरा,
पर संजय का अटूट विश्वास और मेरे पर हमेशा अनडाइंग सपोर्ट वो है उनका, एंड वी बोथ आर ब्लेस्ड टू हैव ईच अदर इन आवर लाइफ्स. I have two lovely daughters. Elder one, as ma'am said, she was a part of La Martiniere. She is my weakness and she will stay my weakness. She will not turn into strength ever. And my younger one, yes, वो मेरी वजूद है, वो मेरी प्रेरणा है, सब कुछ है. और last but not the least, मेरे parents, मेरे in-laws, they always motivate me, they always push me to do more and more, more and more. हमेशा बोलते रहते और क्या कर रही हो मीनू, और क्या कर रही हो. So this, I'm really blessed to have a wonderful family, to have all of them in my life. Next. Next. तो अभी मैंने जो बात की वो था पूरा केयरिंग माइंड्स के बारे में. केयरिंग माइंड स्टार्ट हुआ 2013. वी जस्ट फिनिश 10 years. अगर आज किसी ने T2 पढ़ा है? नो. ठीक है, आप लोग पढ़िएगा. आज मेरा 10 years हुआ है इस बार, और मेरा नया प्रोजेक्ट आया लव यू ज़िंदगी बोल के. उसमें मैं आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी जस्ट टू स्पीक फॉर 1 minute. That is a contest for class 9, 10, 11, 12, and different kind of contest that I've given the ma'am already the letter which you will be participating. Tagline contest, a short essay contest, video contest, all about mental health. So you all can participate in this contest. So and केयरिंग माइंड का एक बात मैं और क्लियर करना चाहती हूँ, जो कई लोग सोचते हैं इट्स नॉट एन NGO, नीदर एन NGO नॉट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. इट्स एन OPD मेंटल हेल्थ क्लिनिक, नॉट फॉर स्पेशल पीपल बट फॉर एवरीबडी, फॉर यू एंड मी, फॉर एवरीबडी. एंड इट चार्जेस एज पर मार्केट स्टैंडर्ड. और केयरिंग माइंड्स का केस स्टडी फिर बोलने का ज़रूरत नहीं है. आई थिंक इट इज़ डन. नेक्स्ट. सो आई कैन फ्लाई. आई कैन फ्लाई के आप लोग कैफ़े के बारे में सुने हैं. हैव यू हर्ड अबाउट आई कैन फ्लाई इंस्टीट्यूट? एनीवन? नो? सो कैफ़े आई कैन फ्लाई एक्चुअली हिस्सा है आई कैन फ्लाई इंस्टीट्यूट का. अ स्कूल फॉर स्पेशल नीड्स, अ यूनिक स्कूल. सो व्हेन आई थॉट ऑफ आई कैन फ्लाई इन 2015, what was unique about? I am talking about this entrepreneurial journey of I Can Fly. So what was unique about it? आपने देखा है जैसे ही हम लोग कोई स्पेशल स्कूल का बात करते हैं तो क्या सोचते हैं? NGO होगा. सोचते हैं ना कि कोई NGO होगा. किसी को कितने NGO भरती हैं कलकत्ता में स्पेशल स्कूल्स के, कितने. तो क्या हमारे घर में अगर स्पेशल बच्चे हैं तो हमको क्या उनको NGO में भेजना होगा? आप बताएं मेरे को, प्लीज़ टेल मी. जैसे हमारे रेगुलर बच्चे प्रियम है, मैं ला मार्टिनियर भेज दी, लोरेटो भेज दी. अब प्राची है तो क्या मैं उसको NGO भेजूंगी? आप क्या सोचते हैं? नहीं ना. सो दैट वाज यूनिक ऑफ आई कैन फ्लाई. आई कुड नॉट सेंड माई डॉटर टू एनी NGO एंड देयर वाज नो फैसिलिटी इन कलकत्ता. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई फैसिलिटी कलकत्ता में नहीं था जो हमारे घर के बच्चे जा सके, हमारे घर के स्पेशल बच्चे जा सके. सब NGO भरती थे. I don't know why this is misconception. जैसे ही बोला जाता स्पेशल स्कूल means NGO. I don't know why this misconception is there. So I created, I Can Fly create करने के पहले ये 2-3 चीज़ मेरे माइंड में थी. One, international class, international standard facility. Why my special children can't go to a standard, international standard facility? The way you all go, they also deserve a place in the society. Actually they are more sensitive, they need better facility than you. That was I believe. और ये बच्चे स्कूलिंग के बाद सपोज क्लास 10 at the age of 15 they don't have any place to go. They sit at home, watch TV, go for evening walks. When I started at I Can Fly, it was 15 plus and a vocational training center. क्योंकि मेरे को लगता था ये बच्चे जब स्कूलिंग ख़त्म कर लेते इनके पास जाने को कोई जगह ही नहीं है, घर में बैठे रहते हैं. सो दैट वाज अ पेन जब मैं इन बच्चों को देखती थी.
तो मैंने ये स्टार्ट किया एज ए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर. दैट वाज द यूनिक आइडिया, दैट वाज द स्केर्सिटी इन द मार्केट. एज ए केस स्टडी, एज ए एंटरप्रेन्योरल वेंचर मैं आपको बता रही हूँ. और इसके लिए मेरे को कोई स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आई हैड एनफ नॉलेज ड्यूरिंग माई डॉटर्स जर्नी. उसके साथ जब मैं देश विदेश घूम रही थी तो आई हैड एनफ नॉलेज. और धीरे धीरे ये और मैंने स्टार्ट किया केयरिंग माइंड का जो लोग अभी जिस लोकेलिटी में है उसी में 6 तल्ला से स्टार्ट किया विथ 3 स्टूडेंट्स. और ये बढ़ता चला गया. और फिर हमने शाम को शिफ्ट करना पड़ा जहाँ कैफ़े आई कैन फ्लाई है. कैफ़े आई कैन फ्लाई बहुत छोटा सा पार्ट है, उसी के ऊपर पूरी हमारी अपनी इंडिपेंडेंट फैसिलिटी है 5 तल्ले की, दैट इज़ आई कैन फ्लाई. हम लोगों को वहाँ शिफ्ट करना पड़ा. एंड दैट इज़ वी हैव फंक्शनल एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, हॉबी क्लासेस, डांस, ड्रामा, यू नेम इट वी हैव इट. वी हैव एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग. इसकी और यूनिक चीज़ ये है कि देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, क्योंकि मेरे बच्चे ज़िंदगी भर बच्चे ही रहते हैं. इन लोगों को स्कूल जाना क्या करेंगे, इन लोगों को ज़िंदगी भर स्कूल ही जाना है, तो इन लोगों को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं. एंड देयर इज़ नो एग्जिट पॉलिसी. दीज 3-4 आर यूनिक थिंग्स इन दिस स्कूल. देयर इज़ नो एग्जिट पॉलिसी. दे विल नॉट गो एनीवेयर. एंड इसके लिए भी मेरा ओल्डेस्ट बच्चा 44 ईयर ओल्ड है. सो मैंने उसके पहले बहुत स्पेशल स्कूल ऑल ओवर के इंडिया में घूमे, रिसर्च किया. और जब आई कैन फ्लाई खुला, एक्चुअली आई एम नॉट बोस्टिंग, बट यू हैव टू सी आई कैन फ्लाई टू बिलीव इट. इट इज़ इंटरनेशनल क्लास. इट इज़ रियली रियल. क्योंकि आप ये सोचिए कि मैंने क्रिएट किया था, मेरी बेटी वहाँ नहीं जाती है, पर मैंने क्रिएट किया था कि सपोज़ मेरी बेटी को कहीं जाना हो, मैं वो कैसा होना चाहिए, बस यही सोच के क्रिएट किया. उतना अच्छा होना चाहिए. ऑल द रूम्स आर एयर कंडीशनड, ऑल द रूम्स हैव CCTVs. no teacher can touch our children. It is no touch policy. So it is very, very unique. And there we charge as per market standard, maybe higher, क्योंकि हम लोगों का standard is very, very high. And we have कोरोना के टाइम हम लोग we became online totally. We were the first school became online. And now we run hybrid classes also. When students are unable to come, we do hybrid classes. And we also do parental education for awareness and other issues. And also हमारे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, डिफरेंट सेलिब्रेशंस के लिए वी डू लॉट्स ऑफ क्वर्की सेलिब्रेशंस. एंड मेरे बच्चे एक्सपर्ट हैं इंस्टा रील्स बनाने में. इफ़ यू फॉलो आई कैन फ्लाई, यू विल बी अमेज्ड टू सी, दे विल बीट यू. नेक्स्ट. सो कैफ़े आई कैन फ्लाई कितने लोग जा चुके हैं? वेरी फ्यू. आई इनवाइट ऑल ऑफ यू. So a cafe I can fly, I started in 2017. So आप लोग को पता है what is unique there? जो लोग गए हैं, can you tell me what is unique? Let them tell. Anybody who has been there? Yes. Yes. So when I started Cafe I Can Fly in 2017, after I Can Fly, it was a small part of I Can Fly. So what was unique? It was first of its kind in the country, followed by many. Intellectually challenged का ये first cafe था. हम लोगों ने कैफ़े ट्रेनिंग के लिए हमारे इंस्टीट्यूट से ही बच्चों को ट्रेन किया. हम लोग बाहर से अभी भी बच्चों को नहीं लेते हैं. मेरे अपने बच्चे हम लोग उनको ट्रेन करते हैं. और ये बच्चे सब बहुत वेल टू डू बैकग्राउंड से हैं. इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कोई सैलरी की. वी जस्ट पे देम स्टाइपेंड.
ऑल ओवर इंडिया, और मेरा कोई F&B में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई नॉलेज नहीं है। तो मैंने क्या किया था, जब कैफ़े खोलने का टाइम आया था, सो आई डिड 3 और 4 बेकरी क्लासेस इन बैंगलोर। वो मैंने ज़रूर किया था, पर इसमें मेरा आई थिंक लक वाज वेरी गुड। सो आई गॉट 1 or 2 लाइक माइंडेड कुलीग्स, जिसने पूरा कैफ़े खोलने और चलाने का भार अपने सिर पे ले लिया, क्योंकि एक्चुअली मेरे को अभी भी कैफ़े चलाना इज़ नॉट माई स्ट्रेंथ। दिस क्लिनिक, मेंटल हेल्थ क्लिनिक, एंड I can fly. This is my calling, my ikigai, not cafe. But I really got someone. मेरा colleague, I think I was lucky enough, जिसने पूरा ये भार ही अपने सिर पे ले लिया कि she is a totally not professionally trained chef from banking background, पर उसने मेरे लिए ये पूरा कैफ़े खोल लिया और आज भी कैफ़े वही चलाती है। She is Samar, my नॉट प्रोफेशनली ट्रेंड शेफ़। और हम लोगों को ये पता था कि हम लोगों को कॉम्पीट करना है जनरल मार्केट से। सहानुभूति के लिए लोग एक बार आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे, स्पेशल बच्चों को देखने के लिए या उसके लिए, उसके बाद कोई आएगा नहीं। सो वी हैड टू कम्पीट विथ जनरल मार्केट। आवर क्वालिटी, स्टैंडर्ड, डेकोर, मेन्यू, एवरीथिंग हैज़ टू बी कॉम्पिटिटिव, ये हम लोग को पता था। तो हम लोग का मेन्यू इज़ ऑल्सो हटके, एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। और इसके लिए हम लोगों ने बच्चों को बहुत दिनों तक ट्रेन किया, आई थिंक मस्ट बी मोर देन 3 months। और उस खोलने के पहले 1 week इट वाज सॉफ्ट ओपनिंग विथ जस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि ये बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज सबके सामने इन बच्चों को एकदम अच्छे से पेश आना ही था। सो ये टेस्ट एक्चुअली मेरे को मेरी फैमिली के सामने पास होना था। मेरी फैमिली ने मुझे अलाउ नहीं किया कि जब तक तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पूरा कुलीग अच्छे से पास नहीं हो जाते इस 1 week में, वी विल नॉट अलाउ यू टू ओपन। सो वी पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे मेरी लाज रख लिए और 1 हफ्ते में वी डिड इट। सो एंड इसमें क्वर्की ट्रेंड्स ये कि वी मेक इंस्टा रील्स एंड सब तरह के गेम्स हैं, सब तरह के। वी ऑल्सो हैव कराओके, वी हैव मेन्यू विथ अ डिफरेंस। सो आई वॉन्ट टू एंड, लेट अस कंक्लूड विथ, आज आप T2 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा व्हाट इज़ माई कॉन्टेस्ट इज़ ऑल अबाउट। सो आई एम एंडिंग विथ दैट, लव यू जिंदगी, एंड द जर्नी कंटिन्यूज। थैंक यू।